Aeronautical Development Agency, Ministry of Defence, Government of India. Walk-in interview requirement of project assistant on tenure basis. वॉक इन इंटरव्यू प्रोजेक्ट असिस्टेंट के कार्यकाल के आधार पर किया गया है, इंटरव्यू के बेसिस पे है. ADA इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट फर्स्ट फ्रॉम मेरिटोरियस इंडियन नेशनल्स. Candidates who fulfill the education qualification and other requirement may attend walk-in interview / written test with duly filled in application and testimonials. The requirements and interview / written test are given below. Subject, discipline, qualification. First, mechanical / production engineering, meteorological and material science and engineering. Accepted qualification in the required subject BE, BTech, ME, MTech. Number of vacancy 23. Date of interview 4/9/2023. Second, aeronautical / aerospace engineering. Accepted qualification in the required subject BE, BTech, ME, MTech. Number of vacancy 2. Date of interview written test 7/9/2023. Civil engineering qualification BE, BTech, ME, MTech. Number of vacancy 2. Date of interview written test 7/9/2023. 4. Computer science / infotech / info science qualification BE, BTech, ME, MTech, BSc plus M.Sc. Number of vacancy 25. Date of interview written test 11/9/2023. 5. Electronics / electronics and communication / telecommunication / electrical and electronics / electronics and instrumentation qualification BE, BTech, ME, MTech, BSc electronics / telecom plus MSc. Number of vacancy 48. Date of interview written test 40/9/2023. Note, in case of more number of candidates, a written test will be conducted for screening of candidates for interview and the interview may be extended to the next date. अब कोई भी जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में इंटरव्यू को अगली तारीख तक भी बढ़ाया जा सकता है. एंड नोट 2 4 क्रिटेरिया. थर्ड, एज मेंशन बिलो, written test in mandatory and candidates qualify in it will only be allowed to give the interview. इंटरव्यू को अगली तारीख तक भी बढ़ाया जा सकता है जैसे कि बताया गया है. एंड क्राइटेरिया 3, इंटरव्यू में बी एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट डेट इन केस ऑफ मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. लिखित परीक्षा अनिवार्य है और इसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को केवल साक्षात्कार देने की की अनुमति होगी. आवश्यक योग्यता उम्मीदवारों के पास नीचे उल्लिखित किसी भी क्वालिफिकेशन में आवश्यक योग्यता होनी चाहिए. जैसे कि क्राइटेरिया 1, subject for SI number 1 to 5 hour BE, BTech in first class from a recognized university plus a valid GATE score, or BE, BTech plus ME, MTech both in first class from a recognized university, or BE, BTech in first class from a recognized university plus 2 years post qualification experience in the relevant field subject. मीन्स किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में BE, BTech होना चाहिए. एंड किसी भी विश्वविद्यालय से BTech प्लस ME, MTech दोनों प्रथम श्रेणी में होना चाहिए एंड मान्यता प्राप्त होना चाहिए और 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए. एंड सेकंड क्राइटेरिया A, सब्जेक्ट फॉर SI नंबर 4 अबव CSIS IT BSc प्लस MSc कंप्यूटर साइंस, info science, infotech both in first class from a recognized university plus a valid and qualified GATE net score for JRF / lectureship assistant professor conducted by UGC / CSIR, or 2 years post qualification experience in the relevant field subject. मीन्स सेकंड में भी वही बात कही गई है जो फर्स्ट में कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में आपका BSc प्लस MSc कंप्यूटर साइंस, इंफोटेक प्लस JRF के लिए वैध और योग्य गेट नेट स्कोर होना चाहिए का संचालन किया गया है. एंड UGC CSIR या प्रशासनिक क्षेत्र विषय क्वालिफिकेशन विषय में 2 साल का अनुभव होना चाहिए. एंड 3 में सारे क्राइटेरिया में 2 साल का अनुभव होना चाहिए. एंड BTech BE इन फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. क्राइटेरिया 3 में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में BE, BTech होना चाहिए. एंड 2 years
experience. Age limited 28 years. Age relaxation allowed for candidates belonging SC, ST, OBC as per rules. Stipend 4 criteria 1 2 per month 46 प्लस आपकी सैलरी होगी एंड HR सब मिला के. बी क्रिटेरिया 3 के लिए फर्स्ट सैलरी 39 प्लस होगी. टेन्यूर इनिशियली फॉर 2 years एक्सटेंडेबल अप टू 4 years एज पर रूल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. शुरुआत में 2 साल के लिए परियोजना की आवश्यकता के अनुसार 4 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है. एंड प्रोसीड्यूर फॉर अटेंडिंग द वॉक इन इंटरव्यू राइटन टेस्ट. A. Candidates are advised to bring neatly typed application from biodata strictly as per the format available on ADA website https://www.ada.government.in without fail along with latest passport size photographs, original certificates with mark sheet with a set of self-attest copies. के अनुसार साफ सुथरा टाइप किया को मतलब आपको लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए जो सलाह दी जा रही है वो इस वेबसाइट पर https://www.ada.government.in पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार साफ सुथरा टाइप किया ADA वेबसाइट पर हुआ आवेदन पत्र बायोडाटा लाए. नवीनतम जो पासवर्ड अच्छा होना चाहिए मतलब नया नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ मार्कशीट के साथ मूल प्रमाण पत्र और एक सेट के साथ फेल सत्यापित प्रतियां ले जाना है आपको. एंड मतलब आपको वेन्यू जो प्लेस है कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन एज अबव आर इनवाइटेड टू अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू ऑन द स्पेसिफाइड डेट्स एज मेंशन अबव एट ADA कैंपस 2 सुरंजन दास. एंड जो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि आपको क्या क्या मतलब अटेंडिंग द वॉक इन इंटरव्यू राइटन टेस्ट, इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाके जो भी और भी अगर आपको कोई मतलब इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप जा सकते हैं. एंड बायोडाटा के साथ पासपोर्ट आपको लेके जाना है, पासपोर्ट आकार की तस्वीरें एंड मार्कशीट के साथ मूल प्रमाण पत्र. एंड जो एड्रेस है इसका स्थान उपरोक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को ऊपर उल्लिखित निर्देशित तिथियों पर वॉक इन इंटरव्यू में भाग लेने वाले के लिए आमंत्रित किया जाता है. एंड इसके ADA कैंपस 2 सुरंजन दास रोड न्यू थिपसंद्रा पोस्ट बेंगलुरु 560075. यह रिपोर्टिंग टाइम जो है वो कैंडिडेट्स में रिपोर्ट टू द वेन्यू ऑन द स्पेसिफाइड डेट्स एज एप्लीकेशन बिटवीन 8:30 to 11 AM for registration as verification of document. No candidate will be allowed for registration after 11 AM. जो टाइमिंग दिया गया है वो सुबह 8:30 बजे से 11 बजे के बीच अपने विषय पर लागू तिथियों पर कार्यक्रम के समय उम्मीदवार पंजीकरण और दस्तावेज के सत्यापन के लिए सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक जाएंगे. एंड 11 बजे के बाद उम्मीदवार को पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी. थैंक्स.